example, here we have written the function sum, and then asterisk args we have written. So it means we can compute the sum for any number of argument that has been passed in the function. So here here three functions we have written, three variant of that sum function we have called, like with two arguments, three arguments, with four arguments. But whenever, if suppose we have defined the function like def, and then we have written here sum, and then we initially we don't know how many values will be passed during the calling of the function, then how we can write that kind of function? We cannot write. As if we have written here a comma b, then only we will be able to compute the sum of two values, a and b. So we can only compute the sum equals to sc equals to a plus b. So a plus b will be added. Now if you are calling this function, then you should call with passing two arguments like sum, and then you have to pass like 4 5 only. If you call this function like sum 4 comma 5 comma 6, then in that case it will show an error. Okay na? So we So cannot do. टपल बन जाएगा जितने भी पास करेंगे हाँ, फंक्शन. ये टपल जाता है. एज यू कैन सी हियर एन एग्जांपल आई एम शोइंग टू यू. यू कैन सी that I have in the morning. I've also exercised with the actually some uh, with the tutorial class. So you can see, suppose I have written here asterisk arg, है ना? And this is actually, और यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास कर दिए 4 5 6. ठीक है. So what will be the value printed by this arg? So you can see the format of this arg. This is showing in the form of tuple na. Yes sir. So it is actually tuple, है ना? So if you want to call this one value, or you want to add two values, three values, so you can run loop directly. You can add these value and you can store in the some result variable. You can return that result, है ना? Is it okay ना? So Yes. if you want to call some specific element, so you can like directly write argument of 2. So in that case, last value will be printed na 6. You can see, है ना? In that case, stick args. Suppose I have written here al, or it is a list actually. So what will be the output? Just let me know. What will be the output if Sir, I it will pass here convert list al? to tuple. What will be the output? फर्स्ट में क्या होगा? लिस्ट ऑफ, और arg2 में क्या होगा बताओ? सर आई थिंक सो 4 5 6 लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट होगा और 6 हो जाएगा नॉर्मल. तो arg2 पे क्या आएगा? सर arg2 पे इंडेक्स सेकंड 6 ही आएगा. शो एन एरर. यू कैन सी एरर आएगा. यस सर, बिल्कुल, क्योंकि साइज because list will be passed as a single element ना. If I specify here like यहाँ पे मैंने specify कर दिया a b c, then there's a second element in the tuple. First will be, whole list will be considered as a single element in the tuple. You can see here, this is a single element in the tuple ना. If I passed here na like cd, so there are three element in the tuple. You can see. Now you can write a of g arg of 2. So arg of 2 will be cd, will be displayed, है ना? So you can see. Is it okay na? Okay. Yes sir. Okay, I think it is okay. Okay. So these are the arbitrary argument for the passing for the Python function. Now you can see keyword argument. So keyword में कोई किसी को issue है? Keyword argument is actually also called as a positional argument, where we can change the position. Like suppose in an example, I have already written that same example. I am repeating again. पहले मैंने लिखा था वही example repeat कर रहा हूँ. तो keyword argument में क्या होगा? जैसे suppose I want to compute the difference. So difference में मेरे को subtraction compute करना, so I have to define the function like sub. Okay. तो ये फंक्शन का एक्सरसाइज के लिए मैंने ना आपको एक फाइल दिया हुआ है जुपिटर वाला. तो प्लीज एक्सरसाइज विद दिस फाइल, विद दैट फाइल, है ना? Suppose we have passed here a comma b. These are the two arguments we have passed, and then we are computing the difference. So difference we are printing like print a minus b. So what will be the value will be printed when we pass this 3 or 4? What will be the result? Yes, sir. We pass 3 comma 4. So what will be the result? That is -1. Okay.
Okay, suppose we Minus forgot the order of the value. Suppose we have passed 4 years and 3 years, then result will be 1. one. But we want to change this order, but we want result same. So how we can do? हमको -1 ही रिजल्ट चाहिए, बट ऑर्डर यही रहे. B is equal to 4 and A is equal to 3 ऐसे लिख दोगे तो that, but हमको यहाँ पे B लिखना है, तो B equals to हमको 4 लिखना पड़ेगा. That we want to pass 4 in the B. Here we want to pass the first value as a 3. So order we have changed, though here you can see we have changed the order, but still this will provide you -1. Is it okay? So that you can do. Whatever the value of argument name that we have given here while defining the function, that we have to give the same, exactly same while calling. If we change here B to B1, then in that case it will show an error. You can see. Is it okay na? So naam same hona chahiye. Whatever the name we want to give here, that will be same. That should be same, है ना? Then we will be able to. So this is actually positional argument, and we can swap the position or we can change the position. Okay ना? अब यहाँ पे देखो positional argument, how many argument we have passed? 2. So it will provide the sum or difference of 2 numbers. Just we want to compute the difference or sum it according to the variations. Like we can call it a 3 argument, 4 argument. Then how we can do it? यहाँ पे 2 पास किए तो 2 ही यहाँ पे लिखना पड़ेंगे ना. ऐसा नहीं कर सकते ना, कम कर दो या ज्यादा कर दो. Suppose we want to pass here C equals to 5, and then we want to perform the summation A plus B and plus C. Can we do it? No sir. No. In that case we will get an error. So how we can do it actually? So in Sir, that C ऐड कर दो. बिल्कुल asterisk लगा दो ना, asterisk हो जाता है ना. Asterisk we can do asterisk ARG. In that case asterisk ARG से काम चलेगा? अभी चलेगा? No, it will show an error. You can see. So in that case what we have to do, instead of asterisk ARG we have to put double asterisk ARG. So in that case that is called keyword, arbitrary keyword argument. Arbitrary keyword argument होता है. तो double asterisk put करना पड़ेगा. Single asterisk में काम नहीं होगा हमारा. So in that case double asterisk we need to put. So double asterisk we are putting, then it will be displayed as a dictionary instead of tuple. ये ध्यान रखो. ठीक है सर एक सेकंड, सिंगल एस्टेरिस्क में काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी ना. b equals to 4, a equals to 4. पहले हमने ऐसा कहाँ दिया था? पहले तो नहीं दिया था ना. अच्छा, तो अगर हम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं कॉल तो मतलब दे करते सकते. समय, then you can do here, like if I am specifying only 3 4 5 ऐसा दे रहा हूँ ना, then it single asterisk will pass, then there is a no issue. ओके सर. बीपी हो गया. कोई नहीं. अरे वो insert बटन. In that case there will be no error. कुछ तभी बीपी हो गया सर, वो 4350. हाँ ठीक है, उसको सही कर लेते, कोई नहीं. ठीक है ना. Then it is printing. But if I specified here a equals to 3 or a equals to 4, c equals to 3 and b equals to 5, then in that case it will show an error. ये नहीं. फिर इसके लिए आपको डबल एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा. डबल एस्टेरिस्क लगाओगे तो वो डिक्शनरी बन जाएगा जिसमें a b c, as a b c we have not declared inside this function. So in that case a will be work as a key and 4 will be work as a value. अच्छा सर, इससे पहले ये लिस्ट की, हाँ सर, इससे पहले कर रहा था टपल की तरफ, है ना. तो जब आपने ए बी सी नॉर्मल टाइप्स डाल रखा था तब वो टपल के फॉर्म में उसको प्रिंट करा रहा था, जैसे 435 किया था. अगर उसी को लिस्ट के फॉर्म में करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट 435. नहीं, लिस्ट तो लेता ही नहीं है, टपल बनाता है ना ये. हाँ नहीं, अगर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको टपल के अंदर आ जाए, टपल को फिर कन्वर्ट कर दो लिस्ट में, वो कर सकते हो. ठीक. ओके ठीक है, दैट यू कैन डू, बट डायरेक्टली इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन एज अ टपल, है ना. अच्छा ठीक है, मतलब डायरेक्टली लिस्ट से नहीं, मतलब डायरेक्टली लिस्ट नहीं, डायरेक्टली तो टपल होता है ना. चेंज करोगे तो चेंज भी नहीं होगा डायरेक्टली, तो है ना. ठीक है. उसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लिस्ट ब्रैकेट में टपल का नाम दे दो तो टाइप कास्टिंग हो जाती है. तो दिस इज अ केस ऑफ फॉर आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, है ना. तो आपको सिंगल वैल्यू प्रिंट करनी है. देन हाउ यू कैन प्रिंट, you can specify print. Suppose you want to print 5, how you can print ARG and the key value specify कर दो. क्या है, B specify किया तो B के अंदर क्या है, 5 है, 5. ओके ना. तो सर एडिशन भी इसी टाइप से करना होगा? बिल्कुल. आपको एडिशन करना है तो आप क्या करोगे, ARG
अब मेरे को क्या करना है, ARG में C का वैल्यू देना है, तो C, A और C का एडिशन 8 आ गया। देखो ये भी स्पेसिफाई करना है, तो ARG, अब कोई सा भी ऑर्डर में आप आर्गुमेंट दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये तीनों का एडिशन होगा। सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन कर लो। ए को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा हमेशा, कोई भी ऑर्डर पास कर दो, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट ओके? ओके तो ऑर्डर से अब कोई इंडिपेंडेंट हो गया ना अपना प्रोग्राम, किसी भी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? सर अगर हम लाइक विदाउट Yes, एनी कीवर्ड्स के साथ वैल्यू दिया तो क्या होगा सर? लाइक अगर Without- हम बी के बिना दे दिया अच्छा, तो वो सिंपली लेगा नहीं ना, डिक्शनरी कीवर्ड आर्गुमेंट एक्चुअली ऐसा दे दिया, इसमें कुछ एरर आ जाएगा ना आपका। देखो ये लिखा है follows कीवर्ड आर्गुमेंट, you have to specify key here, then it will be possible ना। ओके सर अंडरस्टूड। की भी दे सकते हो, की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, की दोगे तो की के थ्रू यूज करना पड़ेगा। Then in that case, okay? यस सब सर। चीजें ना आपको जुपिटर की जो फाइल देते हैं ना हम, जुपिटर नोटबुक की वाली फाइल, उसमें सब चीजें एक्सरसाइज दिया हुआ है, और उनको एक्सरसाइज करो, रन करना है केवल आपको, और देखना है आउट, और वहां पे आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल्स आर ओनली डूइंग दिस एक्सरसाइज, आई थिंक। क्यों भाई, सब क्यों नहीं कर रहे हो यार? थोड़ा सा करोगे तो डाउट आएंगे, अगर नहीं करोगे तो डाउट भी नहीं आएंगे बिल्कुल। ये इट इज, है ना, तो यू शुड डू इट एक्चुअली, है ना। तो नाउ इज देयर एनी अनदर? सर अगर हम जुपिटर नोटबुक पे ना करें और खाली पाइथन प्रो उस पे करें, अपने जो हमने इंस्टॉल कर रखा है उस पे तो थोड़ा बहुत अलग भी आ जाता जो है। एक्सरसाइज करा रहा हूँ और जो मैंने दिया है वो कर लो, ठीक है ना। चाहे ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, चाहे जुपिटर पे करो, चाहे पाइटॉस पे करो, कहीं पे भी करो, कहीं पे भी करो, लेकिन कर लो, मेरा ये कहना है, ठीक है ना। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, बस करना है, आप करोगे नहीं तो नहीं सीखोगे, करोगे तो सीखते जाओगे। पाइथन में इतनी सारी चीजें हैं। अब जैसे ये लैम्डा फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देन यू शुड आंसर। अब कॉन्सेप्ट उसका पता होगा, लेकिन आप आंसर नहीं कर पाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सबको स्पेसिफिकली बताया नहीं है, इतना लेक्चर में एक्चुअली टाइम नहीं रहता ना। तो सपोज आई राइट हियर ए कॉमा बी, ऐसा लिखता हूँ, इंक्लूजन फंक्शन का एग्जांपल है, और इसके अंदर मैंने प्रिंट किया, सपोज आई हैव प्रिंटेड हियर ए प्लस बी, और ए प्रिंट कर दिया सपोज, और फिर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डिफ, और इसके अंदर मैंने सम डिफाइन किया, और सम को मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सम के अंदर पास किया ए रिटर्न, रिटर्न पहले छोटा लिखता हूँ, ऐसे नहीं, अभी उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैंने लिखा रिटर्न ए प्लस बी, इसको सम कर लो, चलो, है ना। ठीक है, ये दैट आई हैव रिटन हियर, है ना, और आई हैव रिटन हियर सी इक्वल्स टू सम, यहाँ पे पास किया 4,5। ये तो सब लोग आंसर कर देंगे मेरे को लग रहा है। प्रिंट करूंगा सी को, देन व्हाट विल बी द वैल्यू विल बी प्रिंटेड, ये सब आंसर कर देंगे ना, 9 आएगा। yes, sir. यस सर। Instead of this sum, if instead of this sum, suppose I have written here print a plus b, मैंने ये लिखा, और यहाँ पे रिटर्न में मैंने लिख दिया sum, then what will happen or what will be the value printed by c? बताओ। 9 It will get error. Address of None sum. वो बिल्कुल, एड्रेस ऑफ सम किसने बोला? Manish. मनीषा, वेरी गुड। ये एक्चुअली क्या है, वी आर रिटर्निंग द फंक्शन नेम ना, इट मींस इट विल रिटर्न द फंक्शन नेम, so c will be assigned as a function sum, so c will return the address of the function sum. Okay, it is happening, what is happening in this line? Actually in this line it is happening, suppose I write here return sum, ये ऐसा ही है, अगर आप इसको समझोगे तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। a प्लस बी अगर मैंने यहाँ पे लिखा, एंड a प्लस बी नहीं, सपोज करो मैंने रिटर्न लिखा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, और वी हैव राइट हियर सम 4 5, देन इट विल डिस्प्ले 4 and 5 ना। 9 Is it और okay?
है ना, 4 और 5 का सम डिस्प्ले करेगा। बट इफ आई रिटर्न हियर सम, देन व्हाट विल हैपन इफ आई राइटिंग इफ आई एम प्रिंटिंग सम, में एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ये तो दैट इज द सेम लाइन दैट वी आर प्रीवियसली डूइंग। तो यहाँ पे सम का एड्रेस हम सी में असाइन कर रहे हैं ना। इट मींस अगर मैंने रिटर्न के साथ में सम लिख दिया, इसका मतलब रिटर्न जो वैल्यू फंक्शन को कॉल करके हम जो असाइनमेंट लिखेंगे सी का, तो यहाँ पे सम का एड्रेस किस में आ जाएगा, सी में। तो सी को भी मैं सम के साथ कॉल कर सकता हूं। इफ आई इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई कॉल इट सी, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 6,7, व्हाट विल बी द आउटपुट। 13। अब सी एक फंक्शन बन गया, सी क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, और उसका डेफिनेशन, सम का डेफिनेशन और सी का डेफिनेशन सेम है। तो 6 और 7 का सम प्रिंट कर देगा। ये भी देखो 13 प्रिंट कर रहा है। इज इट ओके? यस सर। क्लियर है ना? हेलो, यस सर, यस सर। सर है ये ना? वाला एक और बार यस बता सर। दीजिए। यस। चलो मैं एक बार और बता देता हूं। देखो सब, आप इसको रिटर्न, अगर मैं रिटर्न नहीं लिख रहा हूं तो रिटर्न के अंदर अगर इफ प्लस ए प्लस बी लिख रहा हूं, ए प्लस बी रिटर्न के अंदर, सपोज ए माइनस बी लिख दिया सपोज, और मैंने ये फंक्शन लिखा सी में असाइन किया, देन व्हाट विल बी द वैल्यू सी विल प्रिंट ए माइनस बी, 4 - 1 प्रिंट करेगा, ये -1 प्रिंट हो रहा है। तो जो रिटर्न के पास वट एवर वी आर राइटिंग विद नियर बाई रिटर्न, दैट विल बी प्रिंटेड बाई दिस सी। Is it okay? If I am writing here sum, it means sum. What is sum? ऐसे sum is actually a function. So address of that function will be assigned to C. Is it okay? So that is also Okay, happen with the sir. list. अगर मैंने जैसे L1 एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में मैंने 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट कुछ भी डाल दिया, 1 2 3 ऐसे करके 3 एलिमेंट लिख दिया, मैंने एक लिस्ट बनाया L1 और L1 इक्वल्स टू L लिखा, और मैं प्रिंट करूंगा L1 को, तो क्या प्रिंट करता है ये L1? What will be the value that will be printed by L1? क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 1 2 1 2 3। तो ये कैसे प्रिंट कर दिया 1 2 3, जबकि we have assigned only L ना? How this L1 printing 1 2 3? Because the reference of L1 is assigned to this, reference of this L is assigned to this L1. So L1 will be exactly same as L, है ना? So same thing is happening in the case of function. As we have written here sum in the return statement, so whatever we have written in near this return statement, that will be stored in this C. So sum we have written, so sum is the address of the function will be stored in this C. So C will be working as a function here. तो C को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और C कॉमा लिख दिया मैंने C 6,7, तो इसका मतलब है मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ 6 और 7 वैल्यूज से, है ना? तो 6 और 7 जाएंगी इस फंक्शन में और वैल्यू स्टोर हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी ए प्लस बी में, 6 और प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे अलग रन होगा और यहाँ पे अलग रन होगा, ठीक है? तो ये इट विल प्रिंट लाइक दिस। अगर मैंने ये लाइन हटा दी, सपोज करो ऐसा लिख दिया ए प्लस बी, तो अभी ये वाला मैं इसको डी लिख दे रहा हूं और एक सी लिखता हूं, सी इक्वल्स टू सम, है ना? सी इक्वल्स टू सम लेगा। अब मैं सी को कॉल कर रहा हूं 6 और 7 से, तो ये 6 और 7 का सम रिटर्न कर देगा, और डी में क्या प्रिंट होगा, 4 और 5 का सम प्रिंट हो जाएगा। तो देखो 4 और 5 का सम 9 होगा, 6 और 7 का सम 13 होगा, तो दैट विल बी डिस्प्लेड हियर, ठीक है ना? तो व्हाटएवर वी आर राइटिंग हियर नियर द रिटर्न स्टेटमेंट, दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल एक्चुअली, है ना? नाउ इट इज क्लियर ना? यस सर, ठीक है। क्लियर। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। अब मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, देखो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता हूं। इसके अंदर मैं अब इसको, ये तो प्रिंट स्टेटमेंट तो लिख के आया हूं, ठीक है? इस प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट ए प्लस बी। अब मैंने एक फंक्शन, आई हैव अगेन डिफाइंड दैट अनदर फंक्शन इनसाइड दिस फंक्शन। तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ये चीजें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सेम है बट थोड़ा दिखने में अलग रहता है। मैंने एक सबट्रैक्शन का फंक्शन बनाया। what that function will do, that function actually return क्या रिटर्न करेगा, डिफरेंस रिटर्न करेगा a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन रिटर्न करेगा। और मैंने इस फंक्शन में कुछ नहीं लिखा, ठीक है? ये फंक्शन लिख दिया, ये फंक्शन इनसाइड द फंक्शन है।
और मैंने यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जो कि बाहर वाले फंक्शन में रहेगा, ठीक है, रिटर्न, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सब। तो अब बताओ ये डी में क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर डी, क्या वैल्यू होगी डी में, ये ऐसा समझ लो आप इसको थोड़ा सा। अब मेरे को समझ, यहाँ 3 स्टेटमेंट है इन द सम फंक्शन, प्रिंट, रिटर्न सब, और ये पूरा होल बॉडी है एक फंक्शन की। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी देखो सर सबका रेफरेंस आएगा। सर माइनस सबका रेफरेंस आएगा, बिल्कुल सही, डी विल प्रिंट द रेफरेंस ऑफ द सब। ये देखो ये लिख रहा है ना, सम डॉट सब, दोनों आएगा। हाँ 9 तो प्रिंट होगा ही होगा, ये तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अब ये रिटर्न में क्या आएगा, मैं डी का पूछ रहा था ना, तो डी में सब का रेफरेंस है। ये देखो सम के अंदर कौन है, सब, उसका रेफरेंस आ गया। देन अब मैं डी फंक्शन कैसा बन गया, सब फंक्शन बन गया। अब मैं डी को बाहर कॉल कर सकता हूँ। What is the use of this inclusion function? If I'm directly calling, if I want to compute the difference of two numbers, suppose I passed here a comma b, a comma b मैंने पास कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे a comma b पास किया, तो a comma b जो भी आएगा तो उसका डिफरेंस रिटर्न करेगा ये फंक्शन, हमेशा हमेशा रिटर्न करेगा। Suppose I want to compute the difference, or I have not written here as a sum, or I want to call this sub function here, ये मैं यहाँ पे कॉल करना चाह रहा हूँ, तो कैन बी कॉल इट। देखो कितना अच्छा यूज है इसका, ये जब बड़ा प्रोग्राम बनाते हो तब उसमें समझ में आता है कि हम ये भी कर सकते हैं। मैंने ये लिखा और यहाँ पे लिख दिया 5,3, कैन बी डू इट, नो सर, because sub is defined inside the sum function, so it will only be called inside this sum function, we cannot access this outside the sum function, is it okay? अगर आउटसाइड लिखोगे तो ये एरर दे देगा, देखो दे दिया, ठीक है। तो आप आउटसाइड तो लिख ही नहीं सकते हो, है ना, तो इस केस में आपको आउटसाइड बट कॉल करना है, तो देन हाउ वी विल कॉल, यू कैन असाइन द रेफरेंस ऑफ सब इन दिस डी एंड देन यू कैन कॉल दिस डी। अब डी को मैं डिफरेंट आर्गुमेंट से कॉल कर दूं, सपोज मैं 6 पास करता हूं, 5 पास करता हूं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट इज 1 विल बी प्रिंटेड। देखो डी अब सब जैसा काम कर रहा है, इस जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना, ओके कि नहीं? यस सर। धीरे से आवाज आ रही है यार। तो यहाँ पे किसी को डाउट है? तो इस टाइप की चीजें बोले बेसिक है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट में फंक्शन का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम जब भी असाइन करोगे किसी भी वेरिएबल में तो एड्रेस असाइन कर देता है, दैट्स इट। अब एड्रेस आ गया किसी का हमारे पास तो हम उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके ना। तो Yes, ये sir. यही चीज लैम्डा में होता था। लैम्डा में भी तो क्या होता था, ऐसा लैम्डा में अगर मैं लिखूं यहाँ पे डी इक्वल्स टू लैम LAMBDA लैम्डा, यही तो करते थे। ए कॉमा बी मैंने लिख दिया और कॉलन में मैंने क्या लिख दिया, a प्लस बी, तो ये क्या करेगा, यही तो हो रहा है। डी इज वर्किंग एज अ फंक्शन, तो ये सेम काम डी यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लिखूं, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है ना, तो ये डी भी डिफरेंस रिटर्न करेगा। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ प्रिंट। अब देखो डी का डेफिनेशन यहाँ पे अलग तरीके से काम करेगा, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन लिख दूं, जो भी है मल्टीप्लिकेशन, तो वहां पे डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे अब डी को कॉल कर रहा हूँ किस नाम से, और क्या वैल्यू से, 4,5, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, या 6,5 भी सेम ही पास करो, 6,5, तो आप देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, देखो इज इट ओके। तो यही तो हो रहा है, डी इज वर्किंग एज अ फंक्शन हियर व्हेन वी आर असाइनिंग विद लैम्डा ना, ओके ना, सेम थिंग इज हैपनिंग इन द लैम्डा, है ना। सर हम डी को लाइक सब कब असाइन किया सर? Sub we have assigned here by calling the sum. When we are calling some function, inside the sum function we have mentioned this statement. So this sub will be assigned to this D. ओके ओके, फिर रेफरेंस नंबर क्यों है लास्ट टाइम फंक्शन हाँ? का? लास्ट टाइम आपने फंक्शन का रेफरेंस नंबर प्रिंट हुआ ना, वो क्यों That है? we can print by directly writing D. D write करो ना। हाँ फिर आएगा, ओके हाँ, ओके, then it will, है ना, okay.
ओके सर रिटर्न सर सम सर कर देंगे तो फिर वो सब को रेफर नहीं करेगा। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, बोलो फिर से। रिटर्न में हम अगर सम कर समझ आया देंगे सर, समझ आया। नहीं नहीं, जो कोई अनदर वन इज, अनदर गाय इज आस्किंग समथिंग, प्लीज। हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल भाई। सर? सर रिटर्न में सम कर देंगे सबकी जगह तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों आएंगे। नहीं, ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी जब आएगा जब मैं उसको कॉल करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो यहाँ पे सम लिख दिया, सम, देन वी हैव नॉट कॉल्ड दिस बॉडी ना, ये अच्छा। बॉडी तो हमने कॉल ही नहीं की ना, यस देन सर। हाउ दिस विल बी एग्जीक्यूटेड? यस सर। इज इट ओके ना? यस सर, ओके। So we cannot display this a minus b, है ना? We are having this body, but we cannot use this body as we have not called it, ना? यस सर, ओके। That's why, है ना? एंड वी So कैन नॉट कॉल दिस बॉडी आफ्टर द function, yes, सम। we cannot call. Yes, we cannot call. Okay ना? Okay, I think. Okay, now we should move. आधा टाइम तो इसी में चला गया। चलो, अब मेरे को लग रहा है किसी को कोई डाउट है रिकर्सन में, थोड़ा सा क्वेश्चंस हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो रिकर्सन में किसी को कोई डाउट है, देन यू शुड आस्क प्लीज, क्योंकि ये पार्ट है ना, फिर कवर नहीं करूंगा, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करना है मेरे को। ओके, तो यू कैन आस्क एनी डाउट हियर। चलो, ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे लास्ट टाइम पे, एक्सरसाइज के दिए थे, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, सो यू कैन अगेन एक्सरसाइज दीज क्वेश्चंस। If anyone having any query in these questions, then please ask me how to solve the recursion. If the given function is here, do function is a recursive function, so how we will predict the output for that kind of functions? So all of you are able to do it? Yes, sir. Is anyone, please, anyone having any query here, then you can ask how we have to solve this recursion function. I'm again explaining so you can see. If anyone having any query, so you can ask, please. कुछ ऐसे होंगे जो पूछ ही नहीं रहे होंगे, क्यों भाई? कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सपोज we have written this function here, so you can see this is the body of this function. Now here we have called this function do of n, so it will be n is 3, so we have called this d of 3. So when we are calling this d of do of 3, so this function will be called as yes. So what is the body written inside the do? That will be called, so in x is greater than 0, as 3 is greater than 0, so 3 statement will be executed. D of x minus 1, first is, second is this statement, and third is this statement. So first statement, d of x minus 1, that is 2. Okay, next statement, second क्या होगा? print of x एग्जीक्यूट होगा, जब ये do 2 कंप्लीट हो जाएगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। थर्ड स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा? do of 2 फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब ये print x कब होगा? when this do 2 will be completed, so we have to complete this do 2. when we are completing this do 2, then we have to again call this body, so we have to again call this body, then we have to write three things again. First thing, do of when n is x is 2, so we have to call x is greater than 0, so we have to call d of 1, and then we have to print of x, so print of x will be executed when d of 1 will be completed, so d of 2 will be here and d of 1 will be again. So in order to print this d2, we have to complete this d of 1, so d of 1 को complete करने जाओगे, then there will be three things again. You can see 1 पे जाओगे तो x is greater than 1, so d of 0 will be there, print of 1 will be there, and d of 0 will be there. अब ये 1 कब प्रिंट होगा? when we will be able to complete this d of 0, so d of 0 के लिए कॉल करोगे, then this function will be completed. इसमें there is a no statement that we have written, we have only written this return statement, so return will be called, then there will be no printing, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, then it means d0 will be completed. d0 complete करने के बाद then we have to execute this p of 1, so 1 will be the output that displayed at the output screen, then we are going to complete this d0, so ये complete हो गया. Now we have to execute this d0 पे this body will be called, then there will be nothing will be printed, कोई प्रिंट नहीं होगा. then d1 का आउटपुट क्या मिला हमको? only 1 that will be displayed at the screen, है ना? तो d1 कंप्लीट करने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है? print 2, तो 2 प्रिंट हो गया. now we have to call this d1 as d1, ये whole d1 का क्या आउटपुट था? 1,
तो इस D1 का भी क्या होगा 1. नाउ दिस D2 विल बी कंप्लीटेड. सो D2 का आउटपुट, ये होल आउटपुट D2 का है. तो प्रिंट ऑफ x करने जाओगे आप, यहाँ पे तो x में क्या है 3 ना, तो 3 विल बी प्रिंटेड. अब नाउ यू आर अगेन गोइंग टू कंप्लीट दिस D2. तो D2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये होल आउटपुट इज D2. तो सेम आउटपुट मिलेगा. तो फाइनल आउटपुट इज 1 2 1 3 1 2 1. इन दैट वे वी हैव टू कंप्लीट द रिकर्सिव फंक्शन. कोई क्वेरी है यहाँ पे? ठीक है ना? Similar thing will be happen here in the next question. So I think you can solve this question easily. Okay. So 17 will be the output here. है ना? यहाँ पे inside this x आप कॉल करने जाओगे x of n. तो x of n क्या है? ये कंप्यूट करना पड़ेगा. तो x of n, n क्या है 5. तो पहले x of 5 निकालो. तो x of 5 क्या आएगा? देन जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा. जो भी आएगा अभी देखोगे x of 5 निकालोगे, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट. x of 5 कॉल करने जाओगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट रिटन बाय दिस वैल्यू, दिस फंक्शन. देखो x of 5 कॉल करने जाओगे, देन यू शुड राइट हियर x of 5. x of 5 के लिए n is not less than 3, then else you have to call this function as a x of 4 plus x of 2, oh sorry, x of 3 and plus 1. ये कॉल होगा. तो x of 4 कंप्लीट करो पहले. x of 4 कॉल करने जाओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, x of 3 plus x of 2 plus 1. इज इट ओके ना? x of 3 कॉल करने जाओगे तो 3 के लिए क्या आएगा, x of 2 plus x of सर 1. वो वहाँ पे n-3 है ना. 1. हाँ, तो वहाँ सर, n-3 है ना रिटर्न. और सॉरी हाँ 5 - 3 तो ये 2 आएगा ना. पहले मैंने सही लिखा था, फिर गड़बड़ कर दिया. 2 आएगा. 3 तो 4 से तो कॉल करोगे तो 3 कॉल करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, है ना? ओके. और 3 से कॉल करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. 1 नहीं आएगा. कहाँ पे? लेस देन 3 है ना. लेस देन इक्वल्स टू 3 हाँ है. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ. तो 3 पे आप कॉल करोगे तो 3 पे तो आपको ये फिर से पास होगा ना. 4 पे कॉल करने जाओगे तो 4 पे 3 और 1 हो जाएगा. ओके और सर. 3 पे कॉल करने जाओगे तो ये 3 पे तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स ना. यस सर, यस सर. तो 3 पे फॉल्स होगी तो 2 कॉल करना पड़ेगा ना आपको. तो ओके x of सर, 2 की वैल्यू क्या आएगी, x of 2 इज 1, 1. x of 0 इज 1, और ये 1 यहाँ पे. ये तो होल वैल्यू x of 3 की क्या मिली, 3 ना. x of 1 1 होगा तो 3 plus 2 दैट इज 5. तो x of 4 क्या मिल गया आपको, 5 वैल्यू. और x of 2 क्या होगा 1 प्लस 1. तो 5 plus 2 plus इक्वल्स टू 7 मिला. तो ये फंक्शन को x of 5 क्या मिला 7. तो x of 5 ये फंक्शन था आपका. तो x of 5 7 हुआ तो ये फंक्शन क्या बन गया, x of 7. अब x of 7 से कॉल करना है. तो x of 7 कैसा होगा आपका, x of 7 कॉल करने जाओगे तो x of 6 प्लस x of 5. 3 माइनस करो ना. अच्छा 4. 4 आएगा ना. 4 प्लस 1. तो x of 6 कॉल करने जाओगे तो x of 5 प्लस x of 3 2. प्लस 1. अब x of 5 ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो, ये क्या है 7. और x of 3 भी पहले कंप्यूट कर लिया हमने, 3 प्लस 1. तो ये कितना हुआ होल वैल्यू, 7 प्लस 3 प्लस 1 10 11. ये 11 आ गया. और x of 4 भी पहले कंप्यूट किया हमने, वो कितना आया 7 5. x of 4 तो x of 4 5 था ना, 5 प्लस 1. तो ये होल वैल्यू कितनी हो गई 17. 70. तो x of 7 ये 7 क्या रिटर्न हो गया 17. सो 17 इज द राइट आंसर. ठीक है ना. ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गए आपके क्विज में तो आप ध्यान रखना कैसे सॉल्व करने हैं. इज इट ओके ना? ठीक है. यस Okay, so you can see there is another question. Write a recursive function to find the nth term of Fibonacci series. और ये फैक्टोरियल का मैंने दोनों दिया, दोनों के आंसर है. तो is there any query? Have you seen this exercise? यस सर, यस सर. सर ये देखी हुई है.
तो कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, कोई डाउट, क्वेरी, No. एनीथिंग? तो आपको ऐसे रिकर्सिव फंक्शन लिखने के लिए ट्राई करना है, आपको ट्यूटोरियल में मिले होंगे, तो देन यू हैव टू ट्राई टू राइट द रिकर्सिव फंक्शन. यू कैन ट्राई टू राइट द रिकर्सिव फंक्शन फॉर रिवर्सिंग ए गिवन नंबर. एक नंबर दिया हुआ है, जैसे n मैंने वैल्यू दे दिया 1 2 3, सॉरी इसको एस कॉमन हटा के 1 2 3 4 दे दिया, तो आपको रिकर्सिव फंक्शन लिखना जो क्या कर दे, रिवर्स में क्या स्टोर कर दे, रिवर्स एक वेरिएबल हो उसमें क्या स्टोर कर दे, 4 3 2 1. ये ट्राई करना लिखने का. प्लीज डोंट सी ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर मत देखना, को रिवर्स करने की कोशिश करना आप, ठीक है ना? Those who have completed they can directly post in the individual chat, in my personal chat on the Teams. WhatsApp पे नहीं भेजना यार, WhatsApp पे दिखता नहीं है, Teams की चैटिंग में भेजना, ठीक है? ओके ना? Is it okay? Yes, sir. हाँ. So Yes, after sir. that in the last class we have not covered the some several library function. Actually ये library function है. अब इनको कुछ तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे filter है, तो what filter will do? So there is I have also written some example. Filter function and iterator where the items are filtered, और iterator की जगह we can returns and a sequence, ऐसा भी लिख सकते हो. It will return and sequence. Sequence में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Items are filtered through the function to test if item is accepted or not. So you can see. So we have defined here diff my function x. Okay. एक function define किया जिसमें x मैंने pass किया, and then I have written if x is 18 then it will return false, otherwise it will return true. This is a definition of the my function. Okay. Now we have used this filter function, filter my function. हमने function को pass किया और age का value pass किया. age का value pass करूंगा तो ये list इसमें जाएगा. Then what filter will do? Filter function process this list one by one and then match the criteria specified inside the function. So criteria is that if x is less than 18, so 5 will be passed in this x, so it is less than 18, then in that case it will return, क्या return करेगा? False. तो पहली वैल्यू क्या होगी? ऑर्डर्स इज अ सीक्वेंस ना, तो ऑर्डर्स में क्या आ जाएगा? पहली वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स. ठीक है. सेकंड वैल्यू 12 जाएगा इसमें, 12 इज आल्सो, तो सेकंड वैल्यू भी फॉल्स होगी. थर्ड वैल्यू 17, ये भी फॉल्स होगी. 18 इट इज आल्सो फॉल्स, बट टू लास्ट टू वैल्यूज यू कैन सी दीज आर द ग्रेटर देन 18, so in that case it will return true. So these value will be returned as a false and these two value will be returned as a true. So in that case whatever the value we have specified, suppose इस केस में मैं false की जगह पे 1 0 कुछ भी स्पेसिफाई कर देता तो वो रिटर्न हो जाता, जो भी स्पेसिफाई, that will be value will be stored by as a sequence. So you can process this orders and then you can print this x. So order is a sequence na, so you can see what will be the value will be printed by this sequence, that will be false 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 true true, that will be displayed. Is it okay na? Sir, filter function always take two arguments. हाँ, 2 आर्गुमेंट्स लेता है. ये देखो मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है ना, फंक्शन और सीक्वेंस. Okay, sir. ठीक है ना, सिंटैक्स भी लिख दिया है मैंने इसीलिए. ठीक है. तो यू कैन सी नेक्स्ट फंक्शन इज मैप. तो मैप में भी फंक्शन और सीक्वेंस ही जाएगा, बट वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट होगा. मैप फंक्शन एग्जीक्यूट ए स्पेसिफाइड फंक्शन फॉर ईच आइटम इन एन इटरेबल. The item is sent to the function as a parameter. तो आप देख सकते हो what will be a difference between the map or filter function. Same thing is I have written here. I have performed a plus b as a addition. तो यहाँ पे क्या होगा? We have specified the 2 arguments. यहाँ पे ये sequences है, sequence में हमने specify किया है. Is it okay? Is it okay? So what will happen in that case? It will take, if whatever the function I have written here a comma b, so there will be 2 arguments that will be required. So first a will be copied from here, so it will goes there, and b will be copied from here as a argument. one by one एक एक आइटम उठता जाएगा. तो एप्पल ऑरेंज यहाँ से जाएगा और दोनों का समीशन हो जाएगा, तो x में स्टोर हो जाएगा. तो यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस x, देन x विल प्रिंट एप्पल ऑरेंज. फिर बनाना जाएगा, banana and lemon, then banana lemon will be displayed. So you can see the exercise of this example. You can see I am going to show this.
बिल्कुल, अगर अभी तो एरर दे देगा, डायरेक्टली लिखूंगा तो लो। ठीक है, अभी एरर आएगा शायद, मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो एरर देगा ना, फाइव फंक्शन स्पेसेस वगैरह लेगा। तो ये पहली लाइन में तो एरर खत्म हो गया, माई फंक्शन में भी है। ए प्लस बी में आ गया। अब ये एक्स माई एम पे है। अब नहीं आया, ठीक है। अब मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। देन यू कैन सी प्रिंट एक्स, कैन सी जस्ट इट इज अ सीक्वेंस ना, तो इटरेट, वी नीड टू इटरेट इट ना। तो फॉर आई इन एक्स, so you can print I here. It will be iterated, na? You can see one by one this. हो गया रेडी। अरे यार, मिट तो जा रहा है। ठीक है, यू कैन सी, देखो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, लेमन एंड चेरी एंड पाइनएप्पल, एक एक एलिमेंट आ रहा है और अपेंड होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? इज इट ओके? यस सर। ठीक है ना? तो मैप इन द केस ऑफ मैप वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन लाइक मल्टीपल सीक्वेंसेस वी कैन डिफाइन, है ना? वी कैन पास मल्टीपल आर्गुमेंट। सपोज यहाँ पे अगर डिफरेंट एक और टपल पास करता, देन व्हाट विल हैपन? इसको एक बार और पास करता तो व्हाट विल हैपन? इफ आई राइट हियर सी, एरर दिखाएगा सर। तीन का सम नहीं देगा? Excuse me, sir. हाँ, यस। So, what is the data type of R then? So X, sorry, X. X is a sequence, you can see the data type of X. It is actually, यहाँ पे ये सीक्वेंस में ही देता है, तो ये टाइप ऑफ X, you can see it is a map. X is a sequence, so it is a map. It is written type, it's map. So that's why we are directly printing X. That's why it is displaying as a address. उसमें फिल्टर आ रहा था ना, तो यहाँ पे जैसे X डिस्प्ले करूंगा ना, तो X लिस्ट नहीं होगा, टपल लिस्ट और टपल को तो डायरेक्ट डिस्प्ले कर देते थे ना आप। इसमें ये क्या दे रहा है? मैप ऑब्जेक्ट दे रहा है, देखो। Yes, sir. है ना? Thank you, sir. Okay. So here you can see we have displayed apple, orange, orange. दोबारा ऑरेंज ऐड हो गया, की वैल्यू स्पेसिफाई किया तो इज इट ओके ना? So you can pass any number of argument, then you can apply, है ना? Is it okay? So according to that a function we can work, है ना? ये क्लियर है ना मैप का? Yes. Yes sir. Okay. So now you can, ये एक एग्जांपल है, ये देखो बहुत अच्छा है। ये what will be the output for this case? ये बताओ, इस वाले केस में क्या होगा? ये लिखा है ना, x में क्या प्रिंट होगा? प्रिंट x लिखा है ना, डायरेक्टली ऐसे तो नहीं होगा ना, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ ABCD। बिल्कुल सही, because we have typecast this map. Actually return type of this is map ना, then we have typecasted ना, we have converted in the form of list. तो the map will return ORD क्या करेगा? ये लेगा, ये का आर्गुमेंट क्या है? ये का वैल्यू क्या है? 65 का क्या है? 66 67 68. So these value will be returned as a map,
but we have typecasted in a list, so X will display 65 in the form of like that, 65, 66, 67, 68. ऐसे ही मैं लाइब्रेरी फंक्शन लेन होता है ना, लेन, उसका भी यूज कर सकता हूँ, लेंथ का भी यूज कर सकता हूँ। तो लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज डायरेक्टली आप कर सकते हो मैप के थ्रू, ये भी हो रहा है, देखो ना। सर Is इस it okay केस ना? में एड्रेस क्यों नहीं देगा इस केस में? क्योंकि लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने। अगर लिस्ट का एड्रेस जैसे देखो प्रिंट करवाना, दिस इज a x ना, if I written like x equals to and list of x, then what will happen, क्या प्रिंट करेगा? yes, then there is a no need to for writing iterator, क्या डिस्प्ले होगा टाइप में? लिस्ट, लिस्ट डिस्प्ले होगा। यस, ये लिस्ट हो रहा है। अब देखो लिस्ट बन के आ रही है, तो ये लास्ट वाला लूप लगाने की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं है ना। यस ठीक है ना, तो ये काम मैं एक लाइन में ही कर रहा हूं ना। यहाँ पे देखो ना, ये लिस्ट लिख दिया ना मैंने, इट इज विजिबल ना, दिस आई हैव रिटन अ लिस्ट। यस सर, so that's why it is not printing address, because list हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, उनको तो एड्रेस नहीं प्रिंट करता ना, उनको तो डायरेक्टली एलिमेंट प्रिंट कर देता है ना। बट मैप फिल्टर इनमें तो आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यू कैन सी द नेक्स्ट वन इज रिड्यूस। रिड्यूस में क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन द रिड्यूस? reduce function take two argument also function and sequence. It is used to apply a particular function passed in its argument to all of the list element mentioned in the sequence. तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू हम पास करेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना है ना। तो सीक्वेंस में ओके, तो द फंक्शन इज डिफाइंड इन फंक्शनल टूल। अब एक चीज और है, ये एडिशनल चीज है ना, तो फंक्शनल टूल मॉड्यूल्स होता है। अब ये मॉड्यूल्स मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं ये चीजें बताना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा ये पार्ट आप समझ लेना। अगर एक्चुअली इन द पाइथन देयर इज सेवरल फंक्शंस आर डिफाइंड, जैसे लेन फंक्शन था, ORD फंक्शन था, एंड अभी अपन ने कुछ मैप यूज किया, फिल्टर यूज किया। दीज फंक्शन आर डिफाइंड एज सम कॉमन प्लेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड विदाउट इंपोर्टिंग एनी मॉड्यूल। But if I do not include this line in the program, then in this case we will get an error. अगर ये नहीं लिखा तो हमें प्रोग्राम में एरर मिलेगा, बिकॉज प्रोग्राम विल शे दैट दिस रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। अगर मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसका मतलब मैं इस प्रोग्राम को यूज कर सकता हूँ। इफ एनीवन हैज स्टडीड सी प्रोग्रामिंग और C++ और जावा, देन they know about the header files or import packages. So this is similar to the packages where we can directly utilize some library that is available inside this function tool. So function tool के अंदर ये reduce function available है, तो हमको इसको यूज करने के लिए फंक्शन टूल बनाना पड़ेगा। ये देन जैसे मैथ क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए इंपोर्ट मैथ करना सेम थिंग, पड़ता है। दैट इज सेम थिंग, है ना। यस, ठीक है, तो इसके अंदर ये रिड्यूस फंक्शन है। तो देन हाउ यू हैव रिटन द रिड्यूस फंक्शन, यू कैन सी दैट आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी फंक्शन टूल्स, ये कॉल किया ना मैंने, फंक्शन टूल्स विद रिड्यूस, फंक्शन टूल डॉट रिड्यूस। तो वी हैव टू कॉल दिस लाइक फंक्शन के अंदर रिड्यूस है ना, तो वी हैव कॉल्ड इट एज अ फंक्शन टूल डॉट रिड्यूस। तो इनसाइड दिस रिड्यूस वी हैव पास्ड एज अ लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन पास किया मैंने, और फंक्शन और सीक्वेंस क्या दे दिया, LIS। तो LIS में ये एलिमेंट है, इट ओके। तो LIS का ये रेफरेंस यहाँ पे चला जाएगा। देन व्हाट विल बी द वैल्यू दैट विल बी डिस्प्लेड, दिस फंक्शन विल ऐड। तो क्या करेगा, पहले ये 1 वैल्यू उठाएगा। अब देखो एक ही आर्गुमेंट है इसमें, लैम्डा में हमने 2 आर्गुमेंट लिखा है, बल्कि जबकि लिस्ट हमने एक ही पास की है। ऐसा नहीं किया है जैसा मैप में हमने किया था ना, L1 और L2 दे दिया, ऐसा नहीं दिया है यहाँ पे। यहाँ पे लिस्ट इज ए सिंगल आर्गुमेंट। व्हाट विल हैपन इन दैट केस, फर्स्ट वैल्यू विल बी गोज टू दिस A। तो A में पहले क्या आ जाएगा 1, और B में क्या आ जाएगा सेकंड वैल्यू, B में क्या आ जाएगा 3। तो these 2 वैल्यू विल बी एडेड, ये ऐड होगा। ऐड होने के बाद A में क्या स्टोर हो जाएगा 4। A एक्चुअली ये एक्सप्रेशन बनेगा A इक्वल्स टू A प्लस B पहली बार के केस में। तो A में क्या आ जाएगा 4। अब B के लिए क्या आएगा, B के लिए नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा 5। तो नेक्स्ट फिर से ऑपरेशन परफॉर्म होगी A प्लस B। तो A में क्या चला जाएगा 5, B में आ गया, तो 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 ना। 9 आ गया। B में फिर से क्या आएगा,
बी में फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से ऑपरेशन परफॉर्म होगी तो ए में क्या आ जाएगा 9 + 6 15। बी में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2 आ गया। फिर से ऑपरेशन परफॉर्म होगी, ए में क्या आ जाएगा 15 + 2 17। अब कोई एलिमेंट है नहीं तो बी में कुछ नहीं जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन से। ठीक है, तो 17 विल बी प्रिंटेड हियर एट दिस लाइन। ये लाइन क्या प्रिंट करेगी 17, तो 17 इज द आउटपुट फॉर दिस लाइन। सिमिलरली हियर वी हैव डिफाइंड द लैम्डा फंक्शन एज अ मैक्सिमम। तो एक पहलू जाएगी a विल बी कंपेयर्ड विद b, तो a में पहले क्या जाएगा 1, b में क्या जाएगा 3। तो 1 इज ग्रेटर देन 3 है क्या, नो। ये फॉल्स होगा ना, कंडीशन लिख रहा है ना, इफ a ग्रेटर देन b देन a आ जाए, कंडीशन फॉल्स है तो b आ जाए, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा b। अभी हमारा a में क्या आ चुका है 3। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाओगे तो b में क्या आ जाएगा 5, b = 5। तो फिर कंपैरिजन होगा तो 5 बड़ा है तो a में फिर से क्या आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाओगे तो b में क्या आ जाएगा 6। तो फिर यहाँ पे देखोगे b में 6 है, कंपैरिजन होगा तो a में क्या आ जाएगा 6 और b में फिर से नया वैल्यू क्या आ जाएगा 2। कंपैरिजन होगा तो a में 6 ही रह जाएगा और a का वैल्यू फिर एलिमेंट ही खत्म हो गया तो a का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है 6, दैट इज प्रिंटिंग। तो रिड्यूस में थोड़ा सा ये रखना, एक आर्गुमेंट पहले स्टार्टिंग में 2 आर्गुमेंट जाते हैं, फिर एक एक आर्गुमेंट फैच होता है फ्रॉम द लिस्ट। ओके ना, यस यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो दैट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ रिड्यूस। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। एक ये जिप वाला भी है, एक सॉरी एक जिप रह गया, ये जिप लिखना चाहिए मेरे को, रिड्यूस लिख दिया है मैंने यहाँ पे, जिप वाला भी था। कोई बोल रहे थे लास्ट टाइम पे तो मैंने ये स्लाइड बना दी, अलग से डाल दी थी। तो जिप के केस में क्या होगा, जिप फंक्शन रिटर्न है जिप ऑब्जेक्ट। तो व्हाट विल हैपन, ये तो मर्ज कर देता है, सिंपल और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे वी हैव डिफाइंड द 2 लिस्ट ना, जॉन और चार्लीज, माइक, these are the 2 lists with A and B. So we have written here A and B, then it will be created as a zip. So one list will become one tuple will be considered as a one element in the list. तो मैं multiple argument भी दे सकता हूँ। So whatever the argument type, that will be stored in the form of list. Here you can see, है ना। Is it okay? Yes, sir. Okay ना, तो ये उसी केस में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे मर्ज होता है, A जॉन जॉन आ जाएगा, बट इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना, जॉन और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है जेनी। ठीक है, एक एलिमेंट बन गया। दूसरा क्या है चार्ली चार्ली, चार्लिस एंड दूसरा क्या आ जाएगा क्रिस्टी। Charles Christie है ना। ठीक है, अब बट हियर यू हैव टू केयर that here are the 3 elements but here we have passed 4 elements ना, Last element फिर नहीं यूज करोगे आप। तो लास्ट एलिमेंट विल बी लेफ्ट। ऐसा होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें कम होंगे, जो सबसे कम होंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैल्यूज एलिमेंट क्रिएट होंगे, जिप होंगे। यानी सर भाई या तो दोनों लिस्ट है टप मतलब दोनों टपल्स Same की हो। वो लेंथ सेम होनी चाहिए ना, हाँ एटलीस्ट सेम मतलब होना नंबर ऑफ चाहिए, तो फिर एलिमेंट सेम। हाँ अब यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 का ग्रुप बना है, अगर 3 पास करोगे ना तो 3 का ग्रुप बन जाएगा। इज इट ओके ना। 3 का ग्रुप कैसे, एक सेकंड सर। अरे 3 का, अच्छा ए ओके, कॉमा बी ए कॉमा कॉमा सी बी पास कॉमा करो। सी। हाँ हाँ तो ठीक है फिर ना। जॉन जेनी और उसका एक टपल बनेगा और समथिंग का चार्ल्स क्रिस्टी और फिर कुछ एक हाँ और ठीक है, माइक मोनिका समथिंग। ओके ओके, आई थिंक इट इज ओके टू ऑल। सर तब तो लेकिन x इक्वल टू जिप a कॉमा b कॉमा c लिखना पड़ेगा ना, हाँ सी हाँ का वो लिखना पड़ेगा ना, तो सी भी तो यहाँ पे डालना पड़ेगा ना आपको, तभी होगा, ऐसा हाँ थोड़ी ना हाँ होगा। ठीक ठीक, ओके सर, ठीक है ओके, ओके, सो आई थैंक यू थिंक सो इट मच। इज ओके फॉर ऑल। हाँ भाई, तो ये काम मैप से नहीं कर सकते थे? मैप से कैसे करोगे बताओ। मैप से आपको फिर दो 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 आर्गुमेंट पास कर रहे थे ना, दोनों को अपन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वहां पे। इस ऐसे हो ऐसे जैसे अपन यहाँ पे एक एक एलिमेंट एक एक से निकाल रहे हैं, बीबी से निकाल रहे हैं, तो वो वहां पे ऑपरेशन के फॉर्म सर में हो रहा था, ये डायरेक्टली सर करेगा, यहाँ पे कुछ हम लिख नहीं रहे। मैप का हल्का सा लास्ट वाला समझ में नहीं आया एक चीज सर। मैप में क्या वो था ना, फंक्शन डिफाइन करना पड़ रहा था ना अलग से, इसमें कोई फंक्शन तो डिफाइन नहीं किया ना हमने।
सर लेकिन वो काम कैसे कर रहा था? अगर आप एक एक पूरी पूरी लिस्ट ले जा रहे थे और वो ए कॉमा बी की वैल्यूज वो अपने हिसाब से कैसे ले जा रहा था? वो नहीं समझ में आ मैप रहा था मेरे थोड़ी ना को। था, वो तो रिड्यूस था यार। अच्छा सॉरी, हाँ रेड्यूस, वो उल्टा तो बोल रहा रिड्यूस हूँ मैं। था, मैप थोड़ी ना हाँ था, वो रेड्यूस रिड्यूस था। रेड्यूस। हाँ वही सर, रेड्यूस नहीं, में ऐसा अभी जो क्यों मैप का बात कर रहे हैं ना, मैप से बात कर रहे हैं, तो मैप की, मैप में क्या एक्चुअली अपन को ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ रहा था। हु हैज आस्क्ड अबाउट द मैप? सर क्या नाम? क्षितिज। क्षितिज। क्वेश्चन अच्छा यस। था आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपने अच्छे से सोचा कि मैप से भी हम यही काम कर रहे थे, दैट इज गुड। बट मैप में वी नीड टू डिफाइन दैट सेपरेट फंक्शन ना। सर हम हाँ सर लोग वो वहां पे ही ले डायरेक्टली सकते इसको हैं टपल ए कॉमा बी। हाँ, in the case of map, Kshitiz, in the case of map we need to define such kind of function na, a comma b comma c, that we have to define na. यस सर। Then we will be able to only zip or combine the file actually. While we are combining, then the element are actually appended, or whatever the operation we have performed in the function, that operation will be performed actually, है ना? So we need to Yes, write sir. a special function in order to use the map. But in the case of GIF, you can see we are directly calling the list. We are not specifying any function as argument. So GIF will take only iterator or only sequences value, है ना? It does not take any function, है ना? But in the map case, we Okay, have to sir. pass as a function, है ना? Yes, sir. I got it. ठीक है? हाँ, अंदर कोई और अगर कुछ डालना हो टपल ही डाल सकते हैं, कुछ और डालना हो तो कोई तरीका है? कोई कुछ बोल रहा है? सर मैं तुषार। हाँ मैं तुषार। पूछा था कि जिप के अंदर केवल टपल्स को ही इटरेट करा सकते हैं या कुछ और भी कराने का कोई तरीका होता है क्या? इटरेटर लिखा है, आई थिंक दूसरी वैल्यू भी कर सकते हो, तो मैं एक बार रन करके और देख लेता हूँ। इटरेटर मतलब तो सब हो जाता है ना। सर तो मतलब लिस्ट भी तो हो जाएगा ना, अगर करेंगे तो लिस्ट भी हो जाएगा ऐसे ही। इटरेटर में तो सब आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो वी विल चेक इट, जस्ट वेट। एरर तो नहीं है ना फिर? इतना तो मैं लिख देता। नेक्स्ट क्लास में मैं मॉड्यूल कवर करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉड्यूल में है कुछ नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मॉड्यूल वाले क्वेश्चन लैब में आएंगे आपके में एक्चुअली। आज वाली लैब में? अच्छा नहीं सर, वो तो आज नहीं तो कल जब भी लैब होगी तब उसमें एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा मॉड्यूल का, देखो है ना? तो मैं यहाँ पे लिस्ट पास करता हूँ, देन यू कैन सी। सर ये तो लिस्ट है तो लिस्ट पास कर दी ना मैंने, आप देखते हैं हो गया जब हो गया ना? सर वो हाँ हो गया है सर। बट इंटरनली जब जिप करता है तो जिप करने के बाद एलिमेंट टपल बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा भी ले सकता हूँ, ये टपल ले सकता हूँ, वो तो इटरेटर से वैल्यू उठाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है बाहर वाला क्या है। ठीक है, तो वो उठा लेगा। अगर मैं इसकी जगह पे सपोज करो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, ए बी ऐसे, ए बी सी डी ई एफ, तो एक एक एलिमेंट उठाना चाहिए। तो देखो अकेला ए उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी आ रहा है, यस सर। सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई कर, वो जब क्रिएट करेगा ग्रुप, वो उस टाइम पे वो क्या लेगा? टपल। जैसे मैंने सी और स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे, सी इक्वल्स टू, और सी में मैंने क्या दे दिया? 1, 2, 3, स्पेस मत दो नहीं तो वो अलग अलग ले लेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये दे दिया ना। अब मैंने यहाँ पे सी और पास कर दिया, सी, देन व्हाट विल हैपन? ब्लड टू द ब्लड गॉड। तो कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ओके। अच्छा ओके सर। हाँ सर रेड्यूस वाला एक बार और कैसे बता दीजिए भाई। रिड्यूस में तो ऐसे कुछ है नहीं, चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। रिड्यूस वाला मैंने इंप्लीमेंट किया था कहीं, अब फिर से टाइप करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं इसी पर रिड्यूस इंप्लीमेंट कर देता हूँ ना। रिड्यूस में करना क्या है? एक लिस्ट लेनी है और फंक्शन पास करना है और लिस्ट में इटरेट करवाना है। ठीक है, तो ये लिस्ट तो अपनी ऑलरेडी बना लेते हैं ना। एल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दे दिया 2, 5, 4, 6, 8, जो भी दे दिया वैल्यू दे दिया 9 तक। ठीक है, दीज आर द लिस्ट, है ना? एंड नाउ आई एम राइटिंग दिस लैम्डा फंक्शन, हम लिख लेते हैं कोई, है ना? तो x से वैल्यू रिटर्न हो जाएगा या रिड्यूस से वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमको। इंपोर्ट फंक्शन टूल था ना? हाँ सर फंक्शन टूल से।
यही था कि कुछ और था? Yes. स्पेलिंग सही लिखा है? सर फंक्शन सर में फंक्शनल्स FUNC था था। फंक्शनल्स FUNC TWLS हाँ हाँ ठीक है, FUNC। क्या सही है ना? सर एक S फंक्टूल्स टूल्स सर एस। ठीक है, फंक्शनल्स लिख लिया, चलो कोई नहीं। फंक्शनल्स डॉट रिड्यूस, ऐसे लिखा ना? रिड्यूस हाँ के अंदर सर हमको दो चीज पास करना होती है, फंक्शन। फंक्शन तुम चाहो तो इधर डिफाइन कर सकते हो, मैं एक इधर फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, एफ इक्वल्स टू लैम्डा, तो ज्यादा क्लियर हो लैम्डा। ओके, और लैम्डा क्या करेगा, दो आर्गुमेंट लेगा, ए कॉमा बी, और ये दोनों का क्या करेगा, समीशन प्रोवाइड करेगा, ए प्लस बी, है ना? तो अब हाँ मेरे सर को ठीक यहाँ पे मैं फंक्शन को तो एफ से पास कर दूंगा, और इससे क्या पास करूंगा, मेरे को लिस्ट पास करना एल। So what will be the value written by this? So we can print this, print x। अभी आप प्रिंट करोगे तो क्या आ रहा है, 29, because 2 plus 29 2 सर plus लेकिन A 4 और B कितना की आएगा? वैल्यूज कैसे गई हाँ, A और B की वैल्यूज कैसे जा रही हैं उसमें लैम्डा A B में सुन तो लो पहले, सुना तो करो पहले पूरा। देखो, अच्छा ओके what will happen, first 2 will be copied in this A and 4 will be copied in this B, and then operation perform होगा, A plus B क्या आ जाएगा, 6 will be stored in this A। अब बी में कुछ नहीं है तो बी में नया वैल्यू आएगा, तो नया वैल्यू क्या है, 6। तो नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन होगा 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 किस में चला जाएगा, ए में। बी में नया वैल्यू उठ के आ जाएगा, तो बी में क्या आ जाएगा, 8। 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20। 20 किस में चला जाएगा, ए में। नेक्स्ट टाइम बी में क्या आ जाएगा, 9। बी में 9 आ जाएगा, देन 20 + 9 29। 29 फिर किस में चला जाएगा, ए में। तो फाइनल वैल्यू ए की रिटर्न हो जाएगी एफ। एफ एफ एज ए वैल्यू जब रिटर्न करोगे तो ए वैल्यू 29 रिटर्न हो जाएगी, और एफ को जब कॉल करोगे तो 29 वैल्यू प्रिंट कर देगा। हाँ सर ओके सर ओके है ना? हाँ हाँ, तो अगर A और B को अभी प्रिंट करेंगे तो 29 और 9 आएगा। नहीं इसमें तो अपन ने प्रिंट किया ही नहीं है ना, ए बी को लैम्डा फंक्शन है। अगर अगर मैं 10 यहाँ में पे कोई करे तो फंक्शन, देखो मैं फंक्शन को डिस्प्ले करता हूँ, टैफ ऐसे करके डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन सम लिख देता हूँ लैम्डा की जगह पे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? और ए कॉमा बी लिख दिया, और मैंने प्रिंट किया ए को प्लीज कॉमा डाउनलोड द बी को, अटेंडेंस। और रिटर्न किया, जिसको जाना है वो जा सकता है, ए प्लस बी। इज इट ओके ना? अब ठीक है, मैंने इसके लिए यहाँ पे क्या प्रिंट किया, इसमें क्या पास कर दिया, सम। अब ठीक है, यस सर। अब रन करके देख लो। देखो पहले क्या जा रहा है, 2 और 6, 2 और 4 जा रहा है ए बी में, फिर क्या जा रहा है, 6 6, फिर क्या जा रहा है, 12 8 29 29, और फिर 29। फाइनली यस रिजल्ट सर, आ गया। यस सर, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस ठीक है ना? अरे तू लैम्डा लिखा था ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, वो आप सब कर सकते हो यार, ये सब चीजें तो आप पढ़ चुके हो, बस आपको राइट करना, लिखना है, देखना है, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर इसके भी आपने सेपरेट नोटबुक भेज दिया ना हमें? हाँ, मतलब फंक्शन का नोटबुक हमने भेजा है आपको, ये व्हाट्सएप भेज उसमें दिया ना? हो सकता है ये शिफ्ट और मैप रिड्यूस वाले चीजें ना हो, बट उसमें मेरे को देखना पड़ेगा ये चीजें ऐड है कि नहीं है, बट मैंने भेजा है, उसमें है। ये वाला भेजा है आपको, वैसे देख लेना उसको, कुछ नहीं हो तो मेरे को बोल देना, मैं अपने वाला ये फाइल्स एक्चुअली क्या है ना, मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, मैं अलग ये फाइल है मेरी, से देखो काम अनटाइटल करना 1 अनटाइटल 2 अनटाइटल 3 है ना, तो ये डाल दे फाइल से 2 वाली व्हाट्सएप भर पे गई डाल थी, दे। 3 वाली कल मैंने ओपन की कल, तो इसमें सारी एक्सरसाइज में इसी में करता रहता हूँ, ये फाइल बड़ी हो जाएगी तो इसको क्लोज करके 4 वाले ओपन कर दूँ, ये भी आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। हाँ सर, इसको व्हाट्सएप पे डाल दो, व्हाट्सएप से इजीली निकल जाती है। मैं डाल दूंगा, देयर इज नो ठीक है, इशू, है ना? डोंट वरी, है ना? आई विल पुट, है ना? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके, थैंक यू, बाय सर बाय। एक बार मेल भी कर दोगे एक बार ये सिलेबस? सिलेबस? हाँ सर, सिलेबस क्या है एक बार पेपर का? अच्छा, पेपर का सिलेबस फंक्शन तक आएगा भाई। सर एक बार ये ना मेल भी कर देना सर। सर मिड रिकर्शन सेम तो के नहीं लिए, आ रहा ना? मिड सेम के लिए, यस हाँ सर। सर मिड सेम के लिए। सेम के लिए मेल आया नहीं आपके पास क्या? नहीं नहीं सर मेल सर एक सब्जेक्ट का आया क्या? नहीं सर, नहीं आया। चलो कोई नहीं, रिकर्शन तो नहीं आ रहा ना? कोई नहीं सर। रिकर्सन आएगा सर, है ना? आएगा। रिकर्सन आएगा, रिकर्सन पढ़ा दिया है ना, तो इसलिए फंक्शन तक सब आएगा। ओके इंक्लूडिंग सर। जो आज की क्लास में हुआ है।
हाँ ओके विकर्षण तक आएगा ना। ओके सर। टेंशन ना लो, इतना टेंशन ना लो, आप अच्छे से कर पाओगे, मेरे को पता है। एक्सरसाइज कर लेना आप अच्छे से, जिस तरीके से मैंने एक्सरसाइज करवाया है, देन यू विल बी डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट, है ना? यस सर। है ना? ओके थैंक यू सर। थैंक यू बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच सर कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में आप लोग इतना डिस्कशन करते हो, तो कोई दिक्कत हो तो वहां पे सब कॉमन डिस्कस करके आपस में और बता देना, एक क्लास रख लूंगा कोई डाउट वाउट में हो तो, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना, लेकिन ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि तो प्रोजेक्ट ही लिख देते यार। क्यों हाँ समरत? सर, सही बात है, सही बात है सर, इतने बराबर में तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट लिख जाता, उतना टाइपिंग तुम वहां पे कर रहे थे। है। थोड़ा थोड़ा तो कर लिया है, मतलब हाँ सर, जादू तो कर सबमिट लिया करो, उसको खत्म करो, पढ़ाई पे ध्यान दो अब तो। है। एब्स्ट्रैक्ट सीधा तो कर दिया सीधा सर सबमिट, एब्स्ट्रैक्ट तो कर दिया सर सबमिट। नहीं, आपको असाइनमेंट और पकड़ा दूंगा मैं फिर नेक्स्ट वाला। सर रुक जाइए थोड़ा। ये सर भगवान। आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी ना? हाँ नहीं है शायद, नहीं किया।